नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर। कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today we will discuss about session concept, meaning and definitions of welfare state. First in English, then after Hindi. Let's see in English. First of all, introduction. Some individualists consider the state a necessary evil and do not want to broaden its scope in the limited sense. It is an essential element to have a state with no doubt about land and people. Every state wants to provide amenities in every area for its citizens. The state wants to use all its resources and power for the betterment of the people. If such a state executes the entire social, economic, political, cultural welfare schemes of the country as the center of the people, then it is called a welfare state. Next is concept of welfare state. The concept of welfare state has been in our country since ancient times. In the ancient era, the state was considered a means of moral welfare. In the Ramayana period, the concept of Ramrajya was based on the principle of this folk welfare state. It is even written in our religious texts that the king does not want the interest of his subjects and does not perform his duty. He is entitled to hell. Be it Chanakya or Aristotle or Plato, they have also given importance to the concept of welfare state. Public welfare means not the welfare of a particular class but the welfare of the entire public. In this way, the state that acts as a center for the entire public is a public welfare state. And next is meaning and definitions of public welfare state. Public welfare state means a state that uses all its resources and power in the welfare of the people. Basic facilities are provided by the state to the citizens. First definition according to the Encyclopedia of Social Sciences. Public welfare state means a state which considers providing a minimum life expectancy to all its citizens as its essential responsibility.
And second definition is according to H. J. Lasky, a public welfare state is an organization of public in which everyone collectively has a greater interest. This session prepared by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। लेट्स सी इन हिंदी। देखिए आज का जो सेशन है वो है हमारा कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, अवधारणा, अर्थ और परिभाषा लोक कल्याणकारी राज्य की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर। कुछ व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं तो अपने सीमित अर्थ में उसके कार्य क्षेत्र को अधिक व्यापक नहीं बनाना चाहते। भूमि और जन के साथ निसंदेह राज्य का होना जरूरी है। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहता है। अपने समस्त साधनों और शक्ति का उपयोग राज्य जनता की भलाई में करना चाहता है। यदि कोई राज्य इस तरह देश की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कल्याणकारी योजनाओं को जनता को केंद्र मानकर क्रियान्वित करता है तो वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में चली आ रही है। प्राचीन युग में राज्य को नीति कल्याण का साधन माना जाता था। रामायण काल में तो राम राज्य की अवधारणा इसी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित रही है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में यहाँ तक कि लिखा है कि राजा अपनी प्रजा का हित नहीं चाहता और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वह नरक का अधिकारी होता है। चाणक्य हो या फिर अरस्तु या प्लेटो, इन्होंने भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया है, इसके बारे में बताया है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण न होकर संपूर्ण जनता का कल्याण होता है। इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर जो राज्य कार्य करता है वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और परिभाषा को लेकर। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है ऐसा राज्य जो अपने समस्त साधनों और शक्ति का उपयोग जनता की भलाई में करता हो। राज्य द्वारा नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब देखिए सबसे पहली जो परिभाषा है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, उसके अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। बहुत बार कई बार इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ऑफिसर रैंक पे, तो कहीं ना कहीं वो सब इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से जुड़े होते हैं। दूसरी जो है वो एच जे लॉस्की। अभी जो एच जे लॉस्की हैं वो क्या कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिकाधिक हित निहित है। ये जो डिजिटल सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा 2.0 डिजिटल वर्जन के माध्यम से बनाया गया है। ये जो हमारी श्रृंखलाएँ हैं जो लोक प्रशासन, उसमें कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है हमारा बीए, बीएड थर्ड सेम, फर्स्ट सेम को जो कवर करता है लोक कल्याणकारी राज्य, उसमें हमने आज बात की कि लोक कल्याणकारी राज्य आखिर होता क्या है, ठीक है, अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो आज जो है हमने लोक कल्याणकारी राज्य का फर्स्ट पार्ट देखा। अब अगले के वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।